بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط پر خرید و فروخت۔ نمبر 1، خرید و فروخت کے معاملے میں ادھر فروخت کی صورت میں بمقابلہ نقد قیمت کا اضافہ جائز و درست ہے، اور اس طرح کی خرید و فروخت بھی درست ہے بشرطے کہ معاملہ کو مکمل کرتے وقت بات اس پر ختم کی جائے کہ یہ خرید و فروخت ادھر اتنی قیمت پر اور اتنی مدت کے لیے ہو رہی ہے۔ تیسرے فقہی سیمینار منعقدہ جون سن 1990 میں مرابحہ کے دل میں فیصلہ نمبر 4 کے شق با میں کہا گیا کہ یہ درست نہیں ہوگا کہ معاملہ کرتے وقت یہ کہا جائے کہ اگر نقد خریدا جائے تو یہ قیمت ہوگی اور ادھر خریدا جائے تو دوسری قیمت، یا ادھر کی مدت کے کم یا زیادہ ہونے پر قیمت کی کمی اور زیادتی کا ذکر معاملہ کرتے وقت کیا جائے، بلکہ بینک خریدار کو مطلوبہ سامان کا نمونہ دکھا کر وضاحت کرے کہ اس کی قیمت اتنی مدت میں اتنی قسطوں میں ادا کرنی ہوگی اور بینک کو اس کی لاگت پر اتنا منافع دینا ہوگا اور یہی بینک سے خریداری کی قیمت ہوگی۔ معاملہ کی اصل معیاری اور احسن صورت وہی ہے جس کا ذکر بدیل تجویز مرابحہ کیا گیا ہے۔ بدیل تجویز مرابحہ کیا گیا ہے، یعنی ادھار اور نقد کی علیحدہ قیمتیں معاملہ کرتے وقت نہیں بتائی جائے، ایسا کرنا درست نہیں، لیکن اگر اس کے باوجود یہ اصل معاملہ طے کرنے سے پہلے ہوئی اور مجلس عقد میں ہی معاملہ کسی ایک صورت پر متعین طور پر کر لیا گیا تو یہ عقد صحیح ہو جائے گا۔ یہ واضح رہے کہ ادھار اور قسط وار بے میں مثلا 3 مہینے یا 1 سال مدت قیمت کی ادائیگی کے لیے مقرر کی گئی اور خریدار نے وقت مقررہ پر قسط ادا نہیں کی اور 3 ماہ کے بجائے 6 ماہ یا 1 سال کے بجائے 1.5 سال ادائیگی میں لگ گئی تو اس زائد مدت کی وجہ سے قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، ادھر قیمت یکمشت ادا کی جائے یا چند حصوں و قسطوں میں، دونوں صورتیں درست ہیں۔ نمبر 3، اس طرح کی خرید و فروخت کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ معاملہ کو مکمل کرتے وقت قیمت متعین ہو جائے، ابتداءً خواہ صرف ادھر قیمت ذکر کی جائے یا نقد و ادھر دونوں۔ پہلے زمانے میں اس طرح کی خرید و فروخت نہیں ہوتی تھی، ہمارے زمانے میں کثرت سے اس طرح کی خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ ملازمت پیشہ افراد ہے جن کو مہینے میں پیسے ملتے ہیں، اسی طرح کاشتکاروں کو اپنی نفع اپنی چیز کی پیداوار جو ملتی ہے وہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ملتی ہے، اس لیے یقینی طور پر اس درمیان میں کوئی چیز خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر قسط والا مسئلہ ہی ایسا ہے جو دونوں کے لیے آسانی ہو۔ اتنی بات ضرور ہے کہ ادھر خریدنے کے اوپر قیمت زیادہ ہوتی ہے اور نقد خریدنے کے اوپر قیمت معیاری ہوتی ہے، اور اسی لیے بولا بھی جاتا ہے کیش پیمنٹ، اگر ہم کیش دے دیتے ہیں تو اس کی اتنی قیمت ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ بول کر اس کے اوپر اس کے سامنے والے سے کنسیشن بھی لیا جاتا ہے، کچھ قیمتوں میں کمی کروائی جاتی ہے۔ اس لیے جو اصول اور ضابطے آپ سن چکے ہیں وہی ہے، نئی کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ نیچے انہوں نے ایک بات ذکر کی، پہلے ذکر کیا کہ خرید و فروخت کے معاملے میں ادھار کی صورت میں مقابلے نقد قیمت کا اضافہ جائز ہے۔ نقد کے اندر اس کو فائدہ ہو رہا ہے، ادھار کے اندر اس کو نقصان ہو رہا ہے کہ ابھی قیمت نہیں مل رہی ہے، کاروبار کر رہا ہے تو اس کے پیسے اٹکے ہوئے ہیں اور ٹکڑے مل رہے ہیں، قسط کی بنیاد پر، اس بنیاد پر اس کو کوئی بڑا کام کرنا ہو تو اس کو بھی کسی سے ادھار لینا پڑے تو اس کو بھی قیمت زیادہ دینی پڑے، یا نقد لینا ہے تو اس کے لیے سہولت نہیں ہے، اس لیے یہ پریشانی ہے۔ لیکن تاجروں نے اپنے اعتبار سے، بیچنے والے نے اور خریدنے والے نے اتفاق کر لیا ہے، اس لیے شرعی اعتبار سے گنجائش ہے۔ اس طرح کی خرید و فروخت بھی درست ہے، البتہ معاملے کو مکمل کرتے ہوئے اس بات پر ختم کی جائے کہ یہ خرید و فروخت ادھار کتنی قیمت پر اور کتنی مدت میں ہو رہی ہے، ادھار پر ہے تو اس کو واضح کرنا ہے، نقد ہو تو بولنے کی ضرورت نہیں، نقد ہی خریدے۔ لیکن فقہی کتابوں میں آپ سن چکے ہیں کہ اس طرح معاملہ کرتے وقت دونوں میں سے کسی ایک کا تعین ضروری ہے۔ البتہ انہوں نے ایک شک ذکر کی کہ اگر اس کے باوجود اصل معاملہ طے کرنے سے پہلے ہوئی یہ بات ہے اور مجلس عقد میں ہی معاملہ کسی ایک صورت پر متعین کر لیا گیا، بات چیت گفتگو جو تھی وہ جس طریقے سے آپ سن چکے ہیں بکت و اشترے کی، یہ ابھی معاملہ طے نہیں ہوا ہے، ابھی دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، جملہ خبریہ ہونے کے باوجود جملہ انشائیہ میں اس کو گنا ہے، نحو میں مثال آ چکی ہے، تو عموماً ایسا ہوتا ہے۔ لیکن مجلس کی ابتدا ہوئی تھی معاملہ کے سلسلے میں گفتگو کرنے پر، اور مجلس کا اختتام ہو رہا ہے طے مکمل ہونے پر، یعنی ادھار کا معاملہ طے کر لیا، ادھار اتنا ہے نقد اتنا ہے، نہیں میرے پاس نقد نہیں ہے میں ادھار لینا چاہتا ہوں، تو ادھار پر اس میں معاملہ عموماً تو ادھار ہی پر ہوتے ہیں، یہ طے کر لیا۔ یا کسی کو اچانک روپیہ آ گیا یا اس کو نظر آیا کہ نقد خریدنے کے اندر مجھے کم نقصان ہے اور ادھار میں زیادہ نقصان ہے، تو نقد ہی کا وہ معاملہ کر رہا ہے، تو گفتگو جب تک چل رہی ہے وہاں تک تو معاملہ طے نہیں ہوا، لیکن مجلس نے آخر میں وہ فیصلہ کر لیا تو اب یہ مجلس پہلے بکتی و
शरीक की जुमला मुशाइया की थी और अब उसके बाद मुकम्मल तौर पर बे मुकम्मल हो जाती है। फिर एक मसला जिक्र किया था उधार और नकद के अंदर, उधार अदायगी के अंदर ताखिर होने की बुनियाद पर कीमत में इजाफा तो जायज़ नहीं है, मबी की कीमत में इजाफा नहीं होता है, इसलिए ये भी सही नहीं है। उधार कीमत यकमुश्त अदा की जाए या चंद किस्तों में, उमूमन तो उधार यकमुश्त अदा नहीं होती है। यकमुश्त का मतलब 2 साल के बाद पूरी रकम अदा कर दूंगा। कभी कभार ये भी होता है, वो जानता है कि मैं किस्तें अदा नहीं कर सकता, अब वो सामने वाला इस बुनियाद पर राजी होता है, वो इनके आपसी मामला है, कोई चीज़ गिरवी रखकर या उसको इत्मीनान है कि 2 साल के बाद उसके साथ ये मामला होने वाला है। इसी तरह की खरीद व फरोख्त की सेहत के लिए ये भी ज़रूरी है कि मामला को मुकम्मल करते वक्त कीमत मुतय्यन कर ली जाए और वही बाकी रहेगी, फिर उसके बाद इसमें कमी बेशी नहीं होगी। नंबर 4, उधर खरीदो फरोख्त में नकद मामला के मुकाबले में कीमत की ज्यादती रिबा के तहत नहीं आती। जैसे नकद खरीदो फरोख्त में जो भी कीमत हो वो मबी यानी खरीद करदा सामान के बिल मुकाबिल होती है। इसी तरह उधर खरीदो फरोख्त के मुकाबले में बितियाशुदा कीमत खरीद करदा सामान के बिल मुकाबिल होती है। ये मौलाना तकी साहब ने भी जिक्र किया है कि कभी कभार शुबा होता है कि उधार कीमत अलग है और नकद कीमत अलग है, तो गोया कि रिबन नसिया हो रहा है। उधार की बुनियाद पर आप ज़्यादा नफ़ा ले रहे हैं, यानी रिबा ज़्यादा चीज़ ले रहे हैं, कीमत ज़्यादा ले रहे हैं, जबकि नकद वाली कीमत असल कीमत है, तो ऐसा नहीं है। इल्म अरबा का इत्तिफाक है कि नकद और उधार कीमतों के दरमियान फ़र्क किया जा सकता है, इसलिए कि जिस तरीके से मुश्तरी को फ़ायदा हो रहा है बाय को नुकसान हो रहा है, इसलिए दोनों राजी होकर, यानी नकद के अंदर उसको मुश्तरी को नकद अदा करना परेशान हो गया, तो बाय के लिए उधार बेचकर अपनी कीमत को टुकड़े टुकड़े वसूल करना इसके लिए भी परेशानी है। अब दोनों राजी हो गए हैं किसी एक मामले पर, अल्लाह पता नहीं रखा कि नकद खरीदो तो ये ने उधार ले, तो उसको बुझाई थी बे में, जब तायन हो गई तो अब उसके बाद यह मुकम्मल होती है। इसलिए शरई नुक्ते नज़र से रिबा उस वक्त होता है जबकि आप 1 लाख रुपया कर्ज दो और मजीद 10,000 उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने एक चीज़ की कीमत नकद रखी है 1 लाख और उधार रखी है 1,10,000 और सामने वाला 1,10,000 में खरीद रहा है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि 1 लाख चीज़ की कीमत और 10,000 उधार के ऊपर ये लिया जा रहा है, यानी रिबल फस्ल उसको नहीं कहा जाएगा। यही कहा जाएगा कि ये पूरी की पूरी चीज़ की कीमत 1 लाख भी है और 1,10,000 भी है, आपको जिसमें सहूलत है उसको आप ले लीजिए। कभी 1 लाख समझ में आता है कि कम है, लेकिन पैसा कैश नहीं है और उसके मुकाबले के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हर महीने थोड़ा थोड़ा देकर चीज़ उसको मिल जाती है, तो वो उधार ही को पसंद करेगा, क्योंकि इनकी अपनी पसंद के ऊपर। इसलिए ज्यादती को ज्यादती नहीं कहा जाएगा। ये नकद और उधार की शक्ल के अंदर जो फर्क हुआ, ये दोनों के नफा नुकसान के एतबार से दोनों इस पर राजी होते हैं, इसलिए उलमाए किराम ने जवाज़ कहा। दूसरी बात जो आपको कही थी कि गाड़ी खरीदते हैं महिंद्रा की और उसके अंदर आपको 5 लाख नकद में और उधार हो तो 6 लाख की, अब ये बिआई नहीं 5 लाख नकद इसके और 6 लाख, लेकिन जब आप खरीदते हैं तो आपके साथ गुफ्तगू ये होती है कि 5 लाख रुपया आपके पास से, यानी असल कीमत 5 लाख और 1 लाख रुपया इंटरेस्ट। जब ये सूद के उन्वान से ही आप इसको खरीद रहे हैं तो गया असल कीमत तो 5 ही है और 1 लाख रुपया इनकम, तो 5 का 5 से मुकाबला नहीं, 1 लाख मेरा इसलिए सूद हुआ। उसके मुकाबले में जब 6 लाख हो गए चीज़ की कीमत, तो अब यही कहेंगे कि असल कीमत उधार में बस ये पूरी चीज़ पर कीमत है, कोई ज्यादती नहीं है सूद वाली। नंबर 5, मुतय्यना मुद्दत में कीमत। सुबह हुआ, आपको मैंने कहा था हमारे मोहल्ले में भी हमारे दोस्तों को यही सुबह हुआ कि ये तो दोनों एक ही चीज़ हुई, तो ईद नहीं हुई है, वहाँ इंटरेस्ट का अनुमान दिया। अब तो ये कहे कि तब तो ये, तो ऐसा सामने वाले आपके साथ करते नहीं। जो कंपनियां आपको चीज़ देती हैं वो उधार और नकद का इस तरह का फ़र्क नहीं बतला दी। वो ये कहती है कि आपको किस्त से चाहिए, लोन के तौर पर चाहिए तो इतने, और इसके तौर पर चाहिए तो ये तो बोलते हैं, लेकिन इंटरेस्ट उसके ऊपर मजीद 1 लाख का इजाफा, 1 लाख मजीद इंटरेस्ट ही के अनुमान से आपसे लिया जाता है, चीज़ की कीमत के एतबार से नहीं लिया जाता। ये फ़र्क है दोनों में। और अलूम भी मकासिद है, शरीयत में जो मकासिद होते हैं इसके ऊपर मामले का एतबार होता है। नंबर 5, मुतय्यना मुद्दत में कीमत या किस्त की अदा न करने की सूरत में मजीद किसी तरह की ज्यादती का मुतालबा और मामला सूद के तहत दाखिल है, मामला करते वक्त इस तरह की शर्त लगाई गई हो या ये के बाद में इस तरह का मुतालबा किया जाए। ये सही किस्त अदा नहीं कर रहे हैं, हर महीने चीज अदा नहीं कर रहे हैं, तो तुमको इतना ज्यादा देना पड़ेगा, ये तो बैंक तो ले ही रही है। नंबर इस्लामी बैंकों के लिए जायज नहीं होगा। नंबर 6, जिस शख्स ने बतौर रहन कोई सामान अपने पास रखा, उसका रहन रखे हुए सामान से नफा उठाना सूद है, जो किसी हाल में जायज नहीं है। बतौर रहन कोई सामान अपने पास रखा और फिर रखते हुए रहन से फायदा उठाना आम अहवाल में भी जायज नहीं, और
जैसे आपने जब किसी को उधार दिया है और फिर उसकी बुनियाद पर उसे कोई चीज़ ले ली है तो उस चीज़ से भी नफा उठाना चाहिए। खासतौर लोग खेत दे देते हैं किसी को, वो बेचारे का खेत इस्तेमाल करते ही रहते हैं। अब वो जब तक वो रकम नहीं अदा करेगा वहाँ तक ये तो फायदा उठाता ही रहेगा। ये सूद है, इस तरह यहाँ भी सूद है। नंबर 7, रहन का सामान अगर रहन रखने वाले के पास हलाक हो जाए तो सामान की कीमत अगर देन के बराबर है तो किसी के जिम्मे कोई हक नहीं रहा। बराबर हो गया। अगर सामान की कीमत कम है तो देन की बाकी रकम देन वाले यानी जिसके पास रहन रखा था उसके जिम्मे वाजिब होगी। कीमत कम की है, कर्जा इससे ज्यादा ही किया है। अगर सामान की कीमत ज्यादा है तो अगर रहन लेने वाले के अमल व लापरवाही को इसमें दखल है तो देन से ज्यादा कीमत रहन लेने वाले के जिम्मे वाजिब होगी। नंबर 8, देन को वक्त पर अदा न करने की सूरत में कर्जदार को बार बार मुतवज्जे करने के बाद जबकि उसके ताल मतुल ज़ाहिर हो कर्ज ख्वाह को इजाजत है कि सामान को वाजिबी कीमत पर बेचकर अपना हक वसूल कर ले। लेकिन उसको नुकसान न हो, उसको जितना दिया है जितना उसके पास से वसूल किया है इतना कम कर किया जाएगा या इतनी उसको वापस कर दी जाएगी अगर चीज आपके पास आ गई है। नंबर 9, किस्त और खरीदो फरोख्त की सूरत में फरोख्त करदा सामान को अगर बाय उस वक्त तक के लिए रोकता है जब तक कि उसको तमाम किस्तें वसूल न हो जाए तो ये दुरुस्त नहीं। अलबत्ता ये हो सकता है कि फरीकैन ये तय कर ले कि खरीद करदा सामान बतौर रहन फरोख्त कुनिंदा के कब्जे में उस वक्त तक रहेगा जब तक उसकी जुमला अक्सर अदा न हो जाए। नंबर 10, तयशुदा मुद्दत तक बाद किस्तों को अदा कर देने के बाद बकिया किस्तों के अदा न करने की सूरत में बाय यानी फरोख्त कुनिंदा को यह हक नहीं है कि फरोख्त करदा शय को वापस ले ले और अदा करदा किस्तों को वापस न करे। तो उसकी पूरी कर देनी पड़ेगी, इसलिए कि गोया सौदा कैंसल हो रहा है। आपने चीज बेच दी थी लेकिन सामने वाले के साथ आपने पहले शर्त रखी थी कि अगर सही किस्तें अदा नहीं करोगे तो मैं बीच में से आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा और मेरी चीज ले लूंगा। अब यकीनी बात है कि एक तो चीज उसके पास से गई और दूसरी बात है कि उसको जो रकम मिले उसमें भी कमी मिले तो ये बिला इवज़िन कमी है, ये सूद ही का, क्योंकि व्यय में इजाफा नहीं होता है कीमत में, जो आपस में तय कर लिए वो मुतय्यन हो जाती है और यहाँ ये ज्यादती आप वसूल कर रहे हैं या उसका हक साकिब कर रहे हैं तो उसको तो चीज भी उसके पास नहीं रही और मजीद अपने पैसे जेब में से आप जान चुके हैं। मुजारबा के अंदर शरीयत ने ये रखा है कि मुजारिब की मेहनत होती है, इसलिए जब खोद जाएगी तो सबसे पहले नफा में से दोनों ने अगर नफा कमाया और नफा नहीं है तो फिर किसमें से जाएगी तो माल के माल में से, इसलिए कि उसका माल उसकी मेहनत बेकार जा रही। यहाँ पर भी आप उसके पास से चीज भी ले रहे हैं और जो रकम उसने अदा की वो भी ले रहे हैं तो ये जुल्म हुआ आपकी तरफ। नंबर 11, खरीद करदा सामान को मुश्तरी यानी खरीदार के कब्जे में देकर रहन करार देना दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि खरीदार से बेचने वाला बतौर रहन ले ले और उसके बाद फिर मुश्तरी को आड़ियतन दे दे। इस्लामी बैंकों में ये भी चलता था, खाली ये कहते थे कि हमारे पास है, हालांकि उनके पास होता नहीं, उसी के पास होता था, तो ये भी उसका नाम नहीं है। शरीयत ने हर चीज की जो इस्तिलाह मुतय्यन की उसके पीछे शरीयत के मकासिद है। जब रहन बोलेंगे तो रहन ही मुराद बे है तो बे ही मुराद होता है, आप बे बोलकर रहन मुराद ले लो, रहन बोलकर बे मुराद लो, तो हर एक के तकाजे, हर एक के मुतालबे और हर एक के मकासिद अलग अलग है। ये खल्क़े मबहस करके इसीलिए सब कदम से बना पड़ा। नंबर 12, क्रेडिट लेटर की उजरत की बाबत कमेटी ने यह तय किया कि इस सिलसिले में मजीद गौर-व-खोज किया जाए। क्रेडिट लेटर आप सुन भी चुके हैं, एलसी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इसी को कहा जाता है। तो एलसी अगर सिर्फ इन चीज़ों के दरमियान एलसी का मसला सिर्फ इतना है कि आपको ये चीज़ मिलकर आप कारोबार कर लें, तो एलसी के बगैर कारोबार मुमकिन नहीं है। बैंक जब आपको एलसी का खाता आपका खोलता है इसका मतलब ये होता है कि ये बैंक आपके साथ कारोबार करने में सामने वाले को इत्मीनान दे रहा है, लेकिन इसकी उजरत नहीं होती। असल मसला वो आया था, आप समझ। नंबर 13, कर्ज की दस्तावेज यानी रसीदात पर्चियाँ वगैरह का किसी तीसरे शख्स के हर फरोख्त करना कि अब वो कर्ज वसूल करे और मालिक हो जाए। कर्ज देने वाला या वाजिबात का मुस्तहिक वाजिब रकम से कम लेकर इस मामले से मुस्तहिक वाजिब रकम से लेकर इस मामले से अलहदा हो जाता है। इस तरह की खरीदो फरोख्त भी जायज़ नहीं है। नंबर मौलाना लिखता है इसलिए कि तीसरे के हाथ फरोख्त कर देना कि वो वसूल करे और वो बात के अंदर पूरी तो वसूल नहीं होती है, नब्त ले रहा है। आदमी को ज़रूरत है 1 करोड़ रुपए की और उसने कोई माल तैयार करके तैयार किया है, सामने वाले को उसने माल दे दिया है और अब वो 1 करोड़ रुपये का उसका माल तो वहीं लगा हुआ है, उसको अब नया ऑर्डर आया है, उसको माल चाहिए, पैसे कैश चाहिए, तो अब वो किसी दूसरे को कह दे कि ये हमारे सामने वाले के साथ ये मामला हुआ है और ये 1 करोड़ रुपये हैं, आप इसके बजाय मुझे 5 लाख कम दे देना, 95 लाख लेकिन अभी मुझे दे दो, मुझे कारोबार की ज़रूरत है।
और जब उसके पास से आएंगे तो आपको पूरे करोड़ मिल जाएंगे, ये जायज़ है। नंबर 14, वाजिबुल अदा रकम की मिकदार कम करके फौरी वसूल कर लेना, जिसे ज़ा व तअज्जल के अल्फाज से ताबीर किया जाता है। अगर असल मामला में कोई मुद्दत अदाए देन की मुअय्यन न हो तो जायज़ है कि ये एक तरह का तबर्रु है, और अगर मुद्दत मुअय्यन हो तो इस तरह का मामला जायज़ नहीं होगा कि जिस पर देन वाजिब है वो मुद्दत का फ़ायदा उठाकर वाजिबुल अदा देन को कम करा रहा है। आप सुन चुके हैं, जल्दी अदा करे या देर से अदा करे, कुछ उसूल और ज़ाब्ते, कुछ तो बैंकों की सूदी रकम वसूल करने वाली बैंकें हैं, वो तो कहती है कि नहीं तरतीब बाकी है, जल्दी दोगे तो भी हम आपको कुछ कमी करेंगे। लेकिन ताजिर के साथ कभी कभार ऐसा होता है कि एक साल के बाद आपको उसको रकम अदा करनी है, अचानक आपके पास रकम आ गई, अब आप उसको कहो कि ये रकम आप ले लीजिए और जो आपने ऊपर कर्जा सूद आपने मुतय्यन किया है वो साबित कीजिए। तो अगर वो कर लेते हैं, ये तो सूदी मसले की गुफ्तगू है जहाँ इस्लाम में गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस तरह वहाँ कारोबार में चलता रहता है। इसी तरह एक ताजिर ने कोई माल खरीदा और उधार खरीदा है, यकीनन सामने बेचने वाले ने कीमत कुछ ज़्यादा ही मुतय्यन की, अब इत्तेफाक से पैसे आ गए, अब वो जो रकम अदा करनी है उसमें वो सामने वाले को कहेंगे देखिए आपको मुझे इतनी रकम देनी थी लेकिन 1 साल बाद देनी थी, मेरे पास कैश आ गए हैं, मैं आपको देकर छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। वो कहेंगे नहीं, हमारा और आपका जो मुतय्यन हुआ है वही रकम आपको मुझे, तो कानूनी तौर पर उसको गुंजाइश है, इसलिए कि तो मबी है, आपने एक चीज़ खरीदी है, उसकी उधार कीमत एक है और नकद कीमत। अलबत्ता कभी खुद ताजिर कहता है उसको पैसों की ज़रूरत है बेचने वाले तो वो सामने वाले मुश्तरी से कह देगा आपने जो चीज़ खरीदी है आपको तो महीने साल के बाद देनी है, लेकिन अगर आप कहीं से लाकर मुझे जल्दी दे दो तो मैं इतनी रकम आपके ऊपर से काम कर देता हूँ। तो ये ताजर कुछ शक्ल में जाएगी, लेकिन आम अहवाल में जायज़ नहीं। यानी कानूनी तौर पर दोनों मुतय्यन करे पहले से कि इतनी रकम इतनी मुद्दत में दोगी तो इतना माफ़ करूँगा, ये बे में नहीं चलता है। वही की मुतय्यन और समन की मुतय्यन हो जाएगी, यानी समन मुतय्यन नहीं हो तो एक दूसरी बात, समन की मिकदार मुतय्यन हो जाती है, वो यहाँ हो गई। नंबर 15, देन की अदायगी के लिए तयशुदा मुद्दत से कबल देन की अदायगी का मुतालबा जबकि किस्तें वक्त पर अदा न की जा रही हो दुरुस्त है, इसलिए कि फरीकैन ने जो मुआदा किया एक फरीक ने जब उसकी खिलाफ वर्जी की तो दूसरे पर भी उसकी पाबंदी लाजिम नहीं रह गई। देन की अदायगी तो 1 साल के बाद की, लेकिन ये ताओ तोल करता रहता था, इधर उधर गड़बड़ें करता ही रहता है, इनके आखिरी पूरे होते ही नहीं, खास करके बेचारे छोटे काम करने वाले हैं, अचानक ज़्यादा बारिश हो गई तो रिक्शाएँ नहीं चली, परेशानी हो गई, कर्फ्यू आ गया और इस तरह की छुट्टियाँ आ गई, तो इस तरीके की कई चीज़ें बनती है तो सामने वाला पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए इस्लाम ने मना किया है कि पहले से ही इसको सोच कर करो, इसलिए जो आपको किस्त पर दे रहा है तो सामने सूद भी वसूल कर ही रहा है, उसको इससे कोई बड़ी नहीं, पहले कह चुका हूँ मैं, गुजराती फसादात में 78,000 करोड़ रुपये का नुकसान गैर मुस्लिमों को हुआ और 2200 करोड़ का हमें हुआ, हालांकि हमें ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दूसरी चीज़ों ने इनको मारा। इन्होंने लिया था लॉन, इस बुनियाद के ऊपर लॉन अदा नहीं हुई, 5-6 महीने पूरे गुजरात में मुकम्मल इधर से उधर कोई जा नहीं सका। इसके नतीजे के अंदर ये हुआ कि लॉन ली हुई थी और लॉन के अंदर इजाफा हो गया, इसी से किस तरीके से लिया, ये सारी चीज़ों ने रुकावटें डाली। मुसलमान का नुकसान कम नहीं हुआ, नुकसान तो इनके हिसाब से हुआ ही, लेकिन मजबूरी एतबार से नुकसान इनका ज़्यादा हुआ, इसलिए कि इनको ये पता नहीं था कि कर्फ्यू होगा और इधर उधर कारोबार नहीं चलेंगे, और इसकी बुनियाद पर गाड़ियाँ, रिक्शाएँ, मशीनरियाँ, दुकानें, जिन जिन चीज़ों में भी, जिन जिन मालों में भी इन्होंने लिया था कर्जे के साथ, तो कर्जा मासूद अदा करना लाजिम हुआ, नहीं अदा कर सके तो इज्तिमाई खुशियाँ भी हुई उसके बाद। तो देन की अदायगी में आपस में तय हुआ है और अब वो अदा कर नहीं रहा है, अब किसी भी वजह से नहीं कर रहा है, सामने वाले को तो नुकसान ही हो रहा है, उसको तो चाहिए कि किसी से कर्जा लेकर ये चीज़ पूरी कर। या एक हदीस शरीफ में फरमाया साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अदा नहीं कर रहा है तो उसके हक में थोड़ा क्या कर दो, लेकिन वो दिवालिया साबित होना जरूरी है, बगैर दिवालिया के माल है और जानबूझ के इस तरह की वो करे तो यकीनी तौर पर नहीं होता जाएगा। तो पाबंदी सामने वाले पर अब लाजिम नहीं रही, इसलिए अपनी चीज़ वापस लेने के सिलसिले में वो आपसे सौदा कैंसिल कर सकता है। नंबर 16, जुमला अक़साद की अदायगी से कबल अगर मदीन यानी खरीदार की मौत हो जाए तो भी मामला अला हाल ही बाकी रहेगा, जैसा कि दाइन की मौत की सूरत में बाकी रहता है, बशर्ते के बाई यानी दाइन इस पर राजी हो। कर्जे में भी इस तरह कुछ चीज़ें हैं कि मौत के ऊपर ख़त्म होती है और कुछ चीज़ें हमारे फक़हा किराम में मौत पर उसका ख़त्म नहीं, उसका विरासत में भी वो चलना है, ये भी इसी किस्म की तबीयत से। अक़्द मुराबाहा के शरई उसूल। नंबर 1, मुराबाहा का फ़ुक़हा के नज़दीक मुतयन मफ़हूम है। नंबर 2, इस्लामी बैंकों में सब सुन चुके हैं आप, ये भी मौलाना के हैं। अक़्द मुराबाहा मौलाना ने किताब पहले लिखी थी, उसके बाद सेमिनार में। नंबर 2, इस्लामी बैंकों में मुराबाहा जिन शक्लों में राइज है वही शक्लें इस सेमिनार में ज़ेर बहस है। तो उसी की है,
जो मुराबहा शरई तौर पर जायज़ नहीं, इसकी गुफ्तगू हम नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई मुराबहा नाम देकर गैर शरई काम कर रहा है तो नफ्सी नाम से मुराबहा नहीं बन जाएगा। नंबर 3, मशहूर फ़िक़ही कायदा है कि उक़ूद मामलात में मकासद का एतबार होता है, महज अल्फाज का एतबार नहीं होता। लिहाजा मुराबहा के नाम पर जो मामलात मुरव्वज है उनकी हकीकत का एतबार है, महज उनके नामों का एतबार नहीं है। नंबर 4, इस्लामी बैंकों में इस्तेमाल होने वाली मुराबहा की शक्ल मुराबहा की मारूफ शर्तों के साथ इसी सूरत में जायज़ होगी जबकि बैंक की तरफ से जारी करदा मखसूस फार्म कोटेशन में बैंक के जरिए फरोख्त की जाने वाले अशिया की नौइयत, उनकी कैफियत यानी क्वालिटी और दूसरी ज़रूरी सिफात वाज़ेह तौर पर जिक्र की गई हो ताकि जहालत और इबहम की वजह से मामला के हर दो फरीक के दरमियान किसी निज़ा का इम्कान बाकी न रही। इस कीमत खरीद या लागत पर बैंक को मिलने वाले नफ़ा यानी कीमत उसकी अदायगी की मुद्दत और अक़सात की सराहत कर दी गई हो। ये दुरुस्त नहीं होगा कि मामला करते वक्त ये कहा जाए कि अगर नकद खरीदा जाए तो ये कीमत होगी और उधर खरीदा जाए तो दूसरी कीमत, या उधर की मुद्दत के कम या ज़्यादा होने पर कीमत की कमी और ज़्यादती का जिक्र मामला करते वक्त किया जाए, बल्कि बैंक खरीदार को मतलूबा सामान का नमूना दिखाकर वजाहत करके इसकी कीमत इतनी मुद्दत में इतनी किस्तों में अदा करनी होगी और बैंक को इसकी लागत पर इतना मुनाफा देना होगा और यही बैंक से खरीदारी की कीमत होगी। इस्लामी बैंकें ही नहीं, असल तो वहाँ ही मसला आता है। आपस में दो आदमियों में जो अपने मुराबहा होता है, ये भी अगरचे एक तो नक़द उमूमन होता है। आप दुकान पर गए और आपको मालूम, अच्छा ये तो मालूम है कि ये मुझसे नफ़ा ज़्यादा ले रहा है, दुकान लेके क्यों बैठा है, होना हाइट करो तो कोई है, इसलिए यकीनी तौर पर है। लेकिन कितना नफ़ा ले रहा है ये आपने न उसको कहा है न उसने आपको कहा, इसलिए इसको मुराबहा नहीं करेंगे। ये जो शक्ल होती है अगरचे अमलन ये मुराबहा है, लेकिन हम ही तय नहीं हुआ, इसलिए मुराबहतन उसको खरीदना पड़े। लेकिन जब मुराबहा बोलता है तो आय अब बन जाता है। आय ने ये कहा कि मैंने जितने में खरीदा है और जो कुछ खर्चा हुआ है इस पर मैं 10% नफा लेता हूँ, अब 15% ले रहा है तो शर्ती तौर पर ये झूठा हुआ, इसलिए ये जायज़ नहीं है। इसको मुराबहा करे तो मुराबहा नहीं हुआ, आपने तो उसको मुराबहा कहकर सामने वाले को कहा था और मुराबहा कहकर लिया तब तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुराबहा में आपने कीमत मुतय्यन कर। ये ताजिर क्यों करते हैं, जैसे आप देखते हैं हर चीज़ पर आपको इतना सेल दे रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, ताकि दुकान खरीदने वाले उनकी दुकान पर ज़्यादा आए। अब किसी को मालूम है कि ये 10% मेडिकल में दे रहे हैं तो कम जाएंगे, 20% वाले की दुकान पर ज़्यादा जाएंगे, राहत मेडिकल लिखा है तो राहत मिल रही है तो वहाँ ज़्यादा जाएंगे। इस तरीके से जब आप किसी चीज़ को सामने वाले को बेच रहे हैं और उसके ऊपर आप नफ़ा कम ले रहे हैं और तायीन करके आप गुफ्तगू करते हैं तो लोग आपकी तरफ आए हैं आपके कौल और आपके कहने की वजह। अब आप उसमें गड़बड़ करो तो ये मुराबहा पर आपने शरई एतबार से मुराबहा बोलने के बाद मुराबहा की जो मिक़दार आपने ली है वो मिक़दार आपने उससे ज़्यादा ली और सामने वाले को धोखा दिया। इस्लामी बैंकें भी इस तरीके से मुराबहा के अमल करती है। दूसरी बात यह है कि ये तो मुराबहा अमूमन जो होता है वो नक़द वाला होता है, लेकिन उधार वाला मुराबहा होता है तो इसके अंदर चूँकि मुख्तलिफ लंबी होती है इसलिए नफ़ा की मिक़दार मुराबहा में वो ज़्यादा पहले से ही कह कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों की तायीन होनी चाहिए। दरमियानी मुद्दत में सामने वाला अदा न कर सका तो अब मुराबहा के अंदर इजाफा किया जा सकता है, जैसे ये बैंकें करती है कि अगर आपने इतना सूद नहीं दिया है, सूद के साथ इतनी रकम फलाने महीने की जो थी वो नहीं दी तो आइंदा महीने आपके ऊपर 5%, 10% सूद चढ़ेगा। ये तो जायज़ नहीं है। मुराबहा में आपने जो कीमत मुतय्यन की थी मुतय्यन हो गई। अब इस तरीके से मतलूबा सामान बताकर वजाहत करे, पूरी की पूरी यहाँ वजाहतें ज़रूरी है, यानी वो उसूल और वो शर्तें जो शरीयत ने महफूज रखी है। चूँकि मुराबहा में कभी कभार इस किस्म की इस्तिस्नाई हालात आ सकते हैं, उन हालात में फिर आपस में इन दोनों के दरमियान अगर गड़बड़ हुई तो किस तरह हल किया जाए। तो ये चीज़ मुराबहा की जिस वक्त इब्तिदा हो इस्लामी बैंक के साथ उस वक्त ही वजाहत उसकी ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ ये बैंकें हैं नहीं, लेकिन कभी कभार दो आदमी भी आपस में अपने मुराबहा करते हैं तो और उधार ही करते हैं, तो उस मौके के ऊपर रात दिन जो छोटे छोटे ताजिर होते हैं और बड़े ताजिरों से माल लेते हैं तो उमूमी तौर पर इनके दरमियान कभी मुराबहा का अमल इस तरीके से आता है। हुकूक की फ़िक़ही हैसियत। नंबर 1, बे में माल के साथ जोहरी है। नंबर 2, माल की हकीकत नुसूस शरिया ने मुतय्यन नहीं की है, बस इसका असल मदार हर अहद के उस उर्फ़ और रिवाज पर है जो शरीयत से मुतसादिम न हो। ये मुस्तकिल मसला है, क्योंकि अहनाफ के नज़दीक माल की तारीफ के अंदर जो चीज़ जिक्र की है वो जौहर होना उसका जौहरी उनसूर है, बुनियादी है, जौहर की शर्त लगाई गई। और अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जौहर नहीं है, आराज में से है,
یعنی جن کو آنکھوں سے نظر کو نہیں آ سکتی، ہاتھ سے حصی طور پر پکڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن معنوی طور پر ان کا اعتبار کیا جاتا ہے. اسی میں سے کچھ حقوق ہے اس قسم کے جن حقوق کو ظاہر میں تو نظر نہیں آتے ہیں، ان کو ثابت کرنے والی چیزیں ملتی ہے کہ برسوں سے میرا قبضہ تھا، اب کی تصدیق میں نے اپنی کتاب کو ترتیب دے کر محنت سے جمع کیا، اب حق کی تصدیق کسی اور کو دنیا نہ دوں، یہ اس کا اپنا حق ہوتا ہے. اس طریقے سے حدیث شریف میں اسبقیت والے جو الفاظ ذکر کیے گئے، حق اسبقیت، ایک آدمی کسی جگہ پہلے چلا گیا جنگل میں اور اس نے لکڑیاں چن لی، تالاب میں گیا اور تالاب عمومی ہے، کسی کا سبزی نہیں ہے، تو عمومی تالاب میں گیا، وہاں سے اس نے مچھلیاں پکڑی، اب جب احراز کر لی تو اب یہ اس کا اپنا حق ہو گیا. دوسرا کو یہ کہے گا کر لیجیے تابجو ماتے تھے تو یہ سب کے لیے ہے، یہ نہیں ہے، یہ احراز ہو گیا ہے تو لکڑیاں چننے والا بھی جنگل میں اس طرح، یہ سب آپ سن چکے ہیں، یہ پرانی مثالیں تھیں. عصر حاضر کے اندر اس طرح کی اور دوسری مثالیں موجود ہیں کہ جس میں اس طرح کے حقوق آتے ہیں. تو پہلی چیز یہ بتلائی کہ حقوق میں احناف کے یہاں جو پریشانی آئی وہ ایک حقوق تو ایک معنوی چیز ہے، آراز میں سے ہے، اور ہمارے یہاں مال جس کو کہا جائے یعنی بے ہی نہیں ہوئی، جب بے ہی نہیں یعنی بے کی تاریخی صادق نہیں آ رہی ہے، جب آپ اس قسم کے حقوق میں کوئی چیز وصول کرنا چاہتے ہیں، حق کی تصدیق کے علاوہ آپ سن چکے ہیں گڈ ول، اسی طریقے سے دکان کا نام صرف بیچ رہے ہیں آپ، اسی طرح کھیلے بیچنا بمبئی میں جو جانوروں کے بڑے بڑے قبیلے ہوتے ہیں ان کو بیچا جاتا ہے تو کھیلے بیچنا بولتے ہیں، تو وہ اکیلا کھیلا نہیں ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے ان علاقوں کے لوگوں کو زمینیں بھی دی جاتی ہے اور جگہ بھی دی جاتی ہے. ہر ایک کالونی ہے ممبئی میں، ہمارے یہاں سے جتنے بھی لوگ پہلے گئے تھے جوگیشوری میں بھی یہ تھا، وہ سب مالدار ہو گئے، لیکن اب مسئلہ یہ آیا کہ ان کو وہ زمینیں وہ بیچ نہیں سکتے کسی کو، اب بیچ نہیں سکتے تو باہر نکلے تو دوسری جگہ خریدنے جائیں گے تو لمبی چوڑی رقم. مجھے کھیت بھی نکلا ہے کہ یہاں سے گھاس کاٹ کے آپ، انگریزی دور میں یہ سب کچھ تھا، انگریزوں نے بمبئی جیسے شہر کا دودھ پورا کرنا تھا تو کچھ لوگوں کو کچھ سہولت دیں گے، تو نہیں کہ وہ جنگل کا علاقہ تھا، وہ آبادی میں آ گیا. اب آبادی میں آیا تو دوسرے لوگ خریدنے والے، حکومت کی نظریں بدلی، تو اب وہ بڑے بڑے مالدار لوگ لیکن چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنا پڑتا ہے، اور وہی پرانے مکانات جس میں تبدیلی بھی اتنی زیادہ نہیں کر سکتے، کچھ تو ہے اصول اور ضابطے ہیں. تو اب ایسی جگہیں اب وہ قلعہ بیچتے ہیں کسی کو، اس قسم کی شکلیں وہاں بنتی ہے. تو حقوق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کے یہاں جو عام اصول ہے اس کے اعتبار سے اس قسم کی چیزیں بے میں شامل نہیں ہوتی ہے. لیکن فقہائے کرام نے احراز میں آپ کو کہہ چکا ہوں، علامہ شامی کی جو عبارت ہے حضرت مولانا فقی صاحب کا اس پر بھی رسالہ ہے حقوق کی بے والا، اس میں تفصیل موجود ہے، پڑھ لیا جائے. نمبر 3 وہ تمام حقوق جن کی مشروعیت اصالتاً نہیں، مال کی حقیقت نصوص شریعہ نے متعین نہیں کی، اس کا اصل مدار عرف کے اعتبار سے ہے. یہ ایک چیز ایسی ہے کہ عرف پر جب اس کا مدار ہے تو عرف میں جو چیز مال ہوتی ہے اس کو مال سمجھا جائے گا، لیکن شریعت نے جس چیز کو مال نہیں کہا عرف کی تبدیلی سے بھی وہ بدلتا نہیں ہے، وہ چیزیں شامل نہیں ہوتی. نمبر 3 وہ تمام حقوق جن کی مشروعیت اصالتاً نہیں بلکہ صاحب حق سے کسی ضرر کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، ایسے حقوق پر عوض لینا جائز نہیں، جیسے کہ شفا. آپ سن چکے یہ مثال بھی، آپ کا پڑوسی ہے مکان بیچ رہا ہے شرعی اعتبار سے یا اس نے بیچ دیا، اب آپ کو پتا چلا آپ کو حق شفا حاصل ہے، آپ مشتری کے پاس سے اس کو وصول کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ چیز بنانے سے لی لیکن میں اس کا یہ ہوں، مجھے حق شفا کا دعویٰ ہے، زمین پر کھڑے ہو کر بھی اعلان کرے، سن چکے ہیں یہ سب قرآن میں. اب یہ ہے کہ آپ کو پتا چلا کہ آپ کا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے یا کسی نے خرید لیا، اب آپ اس کے پاس گئے اور یہ کہا کہ مجھے حق شفا ہے، اس نے کہا کہ 1 لاکھ روپئے دے دیتا ہوں، تم اپنا حق شفا کیا کر دو، آپ نے 1 لاکھ روپئے لے لیے اور دوسرے دن گئے کورٹ میں، تو اب جائز نہیں ہے، اب آپ کا حق شفا ختم ہوا ہے، اس لیے کہ مال لینا آپ کے لیے جائز، وہ تو آپ پڑوس سے بچنے کے لیے تھے نا، آپ نے تو اسی پڑوسی کو لاکھ لے کے باقی رکھا ہے، تو آپ کو جو حق شفا ہے وہ تو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا، آپ نے تو پیسے لے لیے، یہ جائز. نمبر 4 جو حقوق نصوص شرعیہ سے ثابت ہو البتہ ان سے مالی منفعت متعلق ہو گئی اور عرف میں ان کا عوض لینا مروج اور معروف ہو چکا ہو، نیز ان کی حیثیت محض رفع ضرر کی نہ ہو اور نہ وہ شریعت کے عمومی مقاصد و مصالح سے متصادم ہو، ایسے حقوق پر عوض حاصل کرنا جائز اور درست ہے. اب جتنے اس قسم کے جیسے ابھی میں نے بتلائے، آپ نے کمپنی کھولی ہے، آپ نے ISI کا مارکہ لیا ہے، اب آپ کو کمپنی بیچ رہے ہیں، آپ نے برسوں تک اس کا اشتہار کیا ہے، 30-35 سال تک آدمی دکان لگاتا ہے اور دکان کی لوگوں کے درمیان معروف ہے، اب آپ دکان بیچ رہے ہیں کسی اور کو، دکان کا حصہ نہیں، دکان کا نام جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اور اس کی قیمت لے رہے ہیں،
تو محض یہ نام نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کی جانی مالی قربانیاں لگی ہوئی ہے. اس لیے اس قسم کے حقوق کو بیچنا، سامنے والے کو اس قسم کے حقوق خریدنا یہ جائز ہے. آپ نے خریدار رکھے ہیں، جو لوگ آتے ہیں دکان چاہے بدل گئی ہے، یعنی دکان کے مالک چاہے بدل گئے ہیں، لیکن وہ دکان ان سے وہی فائدے ان کو مل رہے ہیں جو اگلے سے مل رہے تھے. اس بنیاد کے اوپر لوگ عمومی طور پر اس جگہ پر جاتے ہیں. تو اب یہ کمپنی بنائی جاتی ہے، کمپنی کے نام سے وہ چلتی ہے، کمپنی کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، کمپنی وہی باقی رہتی ہے، ڈائریکٹر کا صرف نام بدلنا. اس ڈائریکٹر کے نام بدلنے پر آپ رقم لے رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا ڈائریکٹر بننے کے بعد آپ نے اس کی پوری خدمتیں کی ہے، اور اب اس کے بعد اب آپ وہاں سے ہٹ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ نے اپنی جو قربانی لگائی اس کی بنیاد پر آپ لے رہے ہیں، یہ جائز ہے. اب اس کا کوئی اندازہ بھی متعین نہیں ہوتا ہے. ہر علاقے کا الگ، مارکیٹ میں دکان ہے تو اس کا الگ ہوگا، اور کونے پر کہیں دکان لے کر بیٹھے ہیں تو وہ الگ ہوگی. اسی طریقے سے جگہ کے ساتھ ساتھ علاقہ یا وہ چیز جس کی آپ سودا جس کا معاملہ کر رہے تھے وہ چیز ایسی ہے کہ نفع عام والی ہے، لوگ اس کے اندر یا ضرورت کی ہے، دودھ والے ہیں، اناج والے ہیں، یا ایسے ہیں کہ ان کی دکان پر آپ کا کیا ہوتا ہے روزانہ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ جاتے ہیں، اس کا محنت کر کے تیار کیا تو اس کو لینا چاہیے. نمبر 5، کون سے حقوق کس نوع میں داخل ہے اور اس تفصیل کے مطابق عصر حاضر میں مروج کون سے حقوق قابل عوض ہے اور کون قابل عوض نہیں ہے. ان کی تعین و تطبیق کے لیے مستند دارالافتاء اور اصحاب فتویٰ کی طرف رجوع کیا. جواب دینے کے لیے اس طرح کا جواب بھی چھٹکنے کے لیے دے دیا، لیکن خیر چھٹکنے کے لیے بھی سبھی اصحاب فتویٰ تھے جنہوں نے مشورے کر کے کہا. لیکن چونکہ ہر جگہ اور ہر علاقے کا عرف الگ ہوتا ہے، خرید و فروخت کے معاملات الگ ہوتے ہیں، لینے کے حقوق لینے کی باتیں الگ الگ ہوتی ہے. اس بنیاد کے اوپر کوئی چیز ایسی لی جاتی ہے جیسے آپ سن چکے تھے بمبئی وغیرہ میں، اور اسی طرح ہماری یہ میونسپل کارپوریشن کی جو دکانیں ہوتی ہے اس سلسلے میں پہلے کہہ چکا ہوں. یہ دکان آپ کو بیچتے ہیں تو دکان کا بیچنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، یہ دکان آپ کو دیتے ہیں اور اجرت بھی آپ کو دینی پڑتی ہے. کرایہ ہی کا لفظ بولا جائے، حالانکہ جو کرایہ ہوتا ہے وہ یکمشت آپ دیتے ہیں. اگر اس کو کرایہ کہا بھی جائے تو دکان کی قیمت 5 لاکھ 10 لاکھ جب پہلے شروع میں ہوتی تھی تو یہ تو 10 لاکھ 20 لاکھ جو بھی قیمت اس کی ہوتی ہے وہ 10 لاکھ 20 لاکھ آپ کو کرائے کے دینے پڑتے ہیں. حالانکہ اصل ہے چیز کی قیمت، لیکن آپ کرائے پر دیں گے. اب آپ کسی اور کو بیچنے کا حق رکھیں گے تو کیا بیچ رہے ہیں؟ اپنا حق ہی تو بیچ رہے ہیں جو آپ کے پاس تھا اس کی استعمال کا. اس لیے کہ مالک تو آپ ہیں نہیں، مالک تو میونسپلٹی ہے. اس طرح بمبئی میں بھی بڑی بڑی بلڈنگوں میں سارا یہی ہو رہا ہے. تو وہ مالک تو دوسرا ہے، آپ کا تو کرایہ. اب مالک کیسے لے دستخط کرنے کے؟ میونسپلٹی بھی یہ کرے گی. جب آپ اپنی دکان بیچ کر دوسرے کو بیچنا چاہیں گے تو میونسپلٹی کو کوئی مانڈا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بیچ تھوڑے رہے ہیں، جگہ تو وہی رہی، میونسپلٹی مالک ہی رہی. آپ نے اپنا جو حق انتفاع تھا وہ حق انتفاع دوسرے کو بیچ دیا. آپ نے میونسپلٹی سے چیز خریدی نہیں کہ حق انتفاع لیا تھا. اسی لیے جو لوگ بڑی بڑی پگڑی لیتے ہیں بمبئی وغیرہ میں، وہاں مکانات کی پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں شکل، تو اس بنیاد کے اوپر ان کے لیے بھی لینا جائز. جن علماء نے کہا انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا تو یہ مکان ہے نہیں، لیکن مالک مکان کو ایک بڑی رقم دے کر ہمیشہ کے لیے حق انتفاع سے آپ نے اپنے اعتبار میں کر لیا. اب وہ مالک اس مکان سے فائدہ اٹھائے گا. اب جب آپ دوسرے کسی کو بیچ رہے ہیں تو آپ تو حق انتفاع بیچ رہے ہیں جو مالک سے آپ نے لے لیا ہے اور ابدی لیا ہے، تعبیری لیا ہے. اس بنیاد پر بڑی رقم دی جاتی ہے، ورنہ حق انتفاع اتنا تھوڑا ہوتا ہے. بڑا ایک مہینے کا حق انتفاع 5,000 10,000 30,000 25,000 1 لاکھ زیادہ سے زیادہ بمبئی میں شہروں میں کرایہ ہے. لیکن یہ جو 40 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ دے رہے ہیں یہ کرایہ تھوڑا ہے، یہ حق کے کرایہ ہے. پورا کا پورا حق اس کا ہمیشہ کے لیے مالک کا منتقل. قبضہ کی حقیقت اور اس سے متعلق احکام. نمبر 1، اصولی طور پر قبضے سے پہلے کسی چیز کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے. تاہم اگر قبضے سے پہلے بیع کر دی جائے تو یہ بیع فاسد ہوگی نہ کہ باطل، اور قبضے کے بعد مفید ملک ہوگی. نمبر 2، کتاب و سنت میں قبضے کی حقیقت اور اس کی کوئی خاص صورت مقرر نہیں کی گئی ہے. گویا شریعت نے اس مسئلے میں مسلمانوں کے عرف کو اصل قرار دیا ہے، لہذا ہر عہد کے مروجہ طریقوں اور اشیاء کی مختلف انواع کے اعتبار سے قبضے کی نوعیت متعین ہوگی. نمبر 3، فقہاء کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبضہ اصل میں مویع پر خریدار کے ایسے اصطلاح کا نام ہے کہ مویع پر اس کے تصرف میں کوئی معنی باقی نہ رہی. اسی کو فقہ کی کتابوں میں تخلیہ سے تعبیر کیا گیا. کہا کہ دونوں کے درمیان تخلیہ ہو گیا، میاں بیوی میں بھی تخلیہ ہوا تو حل پورا ادا کرنا پڑے گا. تخلیہ صحیح ہوا وہ خلوت صحیح ہوا. اور یہاں بھی بائع اور مشتری یہ چیز کے قبضے کے اندر جب آپ کا تخلیہ ہو گیا آپ کو پورا اختیار دے دیا. لیکن اس کے لیے آپ سن چکے ہیں دستاویزات، یہ تو لازمی ہے.
हिंदुस्तान में कब्जा भी जरूरी है, इसलिए कि बारूद जाए ना भूत न जाए, भूत जाए ना बारूद न जाए। तो अब आपने किसी से खरीदा, तो अब मामला होते हैं, पूरी बिल्डिंग खरीदते हैं, उसके अंदर बहुत सारे किराएदार होते हैं जो जल्दी किराए वाला मकान नहीं छोड़ते हैं, तो खरीदने वाला इन सारी चीज़ों को जानता है, इसलिए खरीदता है, उसको इस पर पेश नज़र रखकर ही खरीदता है कि किसी दिन इनको देने की बारी आएगी तो मामला तय कर लेंगे, जब तक वो कम रकम नहीं करते हैं वहाँ तक तो रहने दो, और फिर उसके बाद उनके पास से वसूल कर लेंगे, यानी हम देखेंगे मौका जिसके मुताबिक कर लेते हैं। तो कब्जा इसको कहा जाए, ये उर्फ और शरई कानून और हुकूमती कानून उस इलाके का और उसका उर्फ जो होगा उसके मुताबिक ये सारे मामला किए जाते हैं, ताकि उनकी इस तरह में भूमि तौर पर कब्जा यही समझा जाता है, पजेशन बोलते हैं। इसी तरह मकान तामीर करते हैं और आप अपनी कीमत दे देते हैं तो मकान का पजेशन आपको दे देते हैं, चाबी दे दी आपको, तो चाबी देने से मुकम्मल नहीं होता है जब तक आपके नाम पर भी वो चीज़ न हो। इसलिए कि मान ये भगा दिया, कानून कोर्ट में आप जा नहीं सकते, चीज़ आपके नाम पर है ही नहीं, इसलिए तमाम मरहलों को तय करना ज़रूरी है, जिसके बाद हमारे यहाँ कब्जे की पूरी हकीकत मुतय्यन हो जाती है। नंबर 4 ये होता है कि पूरी रकम देने के बाद भी कभी कब्जा नहीं है, और कभी उल्टा होता है कि रकम पूरी नहीं की, कब्जा आपको दे दिया, उसको इत्मीनान है आपके ऊपर, लेकिन नाम पर नहीं किया है, इसलिए आप जाएंगे कहाँ पर। लेकिन इतना होगा कि हिंदुस्तान के कानून में चूँकि कब्जा भी एक मुस्तकिल चीज़ रखता है। बम्बई की आपको मिसाल दी थी कि एक साहब ने एक मकान पर ताला लगा दिया, किराएदार मकान, वो असल में किराएदार नहीं था, वो कोई रिश्तेदार इंतकाल कर गया, उसका दूसरा वसीयतनामा लेके आ गया, तो उसने मुझे ये दे दिया, वही हक इंतफा दे दिया। अब ये इस तरह किया, मकान मालिक को पता चला, उसने कहा उसके बाद हुई है और मैं इसको खरीदने वाला था, तो अब उन्होंने सामने वाले को तो पैसे देने का सवाल ही नहीं है, वो मुश्तरी ही नहीं है, हक इंतफा का मालिक ही नहीं था, तो ऐसे ही वसीयत में आ गया। इन्होंने दूसरा ताला लगा दिया उसके ताले पर, उसने केस किया और ताला भी नहीं लगा सकते, आपको आई फिर लंबी चौड़ी रकम देनी पड़ी, तब ताला यानी केस खत्म हुआ। तो हिंदुस्तान है जो आके बंद करके ऐसे केस चलते ही रहते हैं आप। इसलिए कब्जे की तस्रीहात सिर्फ फुक़हा ने जो जिक्र की उसका एतबार नहीं होगा, उसका भी एतबार और हुकूमत के कानून का भी एतबार, सबका मजमुआ मिलाकर कब्जे की कैफियत क्या होती है ये जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही एतबार किया जाएगा। इसलिए कब्जे की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना फरमाया बे को कब्ल कर, इसमें असल यही चीज़ें थी कि वो कब्जा ही आपका ना हो। अब असरे हाजिर में भी इस तरीके से कब्जा हो ही न सकता हो। कुछ चीज़ें कुछ लोग ऐसा होता है कि वो ज़मीनें बेच नहीं सकते, हुकूमत ने कुछ ओबीसी और इस किस्म की जो नीचे वाले दर्जात के दलित लोग होते हैं उनको दे दी होती है, वो नाम पे दी होती है। तो कोई आपको बना जाए और ये कहे कि मेरी पुरानी ज़मीन बेचने की या पुरानी चीज़ है, कभी दलाल भी इस तरीके से, और आप खुश हो गए कि कीमत कम है उसकी, अब जब खरीदी उसके बाद बेच ही नहीं सकता, फंस गया। हुकूमतें जो फ्री में देती है गरीबों को ज़मीन है, इंदिरा विकास में, इंदिरा आवास में, खुला आवास, ये इस तरीके की भी होती है, वो आप बेच नहीं सकते, लेकिन अंदर अंदर लोग बेच देते हैं। अब जब अखीर में किसी के पास गई है, उसको बेचने की बारी आई और फिर नहीं हुआ तो क्या करेगा। इसलिए इस किस्म की चीज़ों में भी खतरात होते हैं। कब्जा हो ही नहीं सकता है आपका मुकम्मल उसके ऊपर, तो ये कब्जा समझा ही नहीं जाएगा शरीयत के बाद, या अगर आप समझ चुके हैं तो हक के इंतफा ही समझा जाएगा, कब्जा नहीं। लेकिन अब आप किसी भी वक्त उसको बेच नहीं सकते थे, आपने बेच लिया, चल गया, इसलिए कि हुकूमत तो अभी पूछेगी नहीं, जब आपस में झगड़े होंगे और कोर्ट में जाएगा केस, उस वक्त आप हार जाएंगे, आपका कब्जा सही नहीं था। नंबर 4 बे कबल कर्ज की मुमानात गरर इंफिसा की इल्लत पर मबनी है, यानी जब तक मबी खरीदे अव्वल के हाथ न आ जाए इस बात का अंदेशा खरीदार अव्वल के हाथ न आ जाए इस बात का अंदेशा मौजूद है कि मबी उसके कब्जे में आ ही न पाए और वो खरीदार दोम को मबी की हवालगी पर कादिर न रही। सुन चुके हैं आप, बड़े बड़े टावर बन रहे थे और लोगों ने बे कब्जा कब्जे कर ली, कब्जा कब्जे नहीं बल्कि बे मालूम कि कहा कि ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, और एक नमूने के एक प्लॉट बना लेते हैं या कोई एक मकान बना लेते हैं नमूने का, और अब उसको बतला देते हैं कि ये फ्लैट है, और अब आप उस फ्लैट को देखकर दूसरे का ऑर्डर देते हैं। ये इसके साथ तो आपका मामला सही हुआ, ये इस्तिस्ना है, लेकिन आप अब नहीं बेच सकते किसी और को। मुश्तरी अव्वल तो इस्तिस्ना की बुनियाद पर सही हो गए, लेकिन अब दूसरे को आप बेच नहीं सकते, इसलिए कि अभी इसका वजूद ही नहीं है, ये तो किसी और का नमूना आपको बतलाया ना, आपने इस पर मामला किया तो आपका तो इस्तिस्ना हुआ, लेकिन दूसरे आदमी को आप इस्तिस्ना कैसे कह सकते हैं, अभी तो उस चीज़ का वजूद ही नहीं है।
اب بغیر وجود کے اس طرح کے معاملے ہوئے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ دلال دنگ دلال اور بلڈنگ کا مالک کوئی اور بنا رہا ہے، کوئی اور تیسرا کوئی معاملہ کر رہا ہے، ان کے ساتھ معاملے ہو گئے ہیں. اب آپ کو خریدنے کی بات، آپ کمپنی میں گئے تو فلانے سے ملو، اب یہ دوسری کمپنی کا نام اور کسی سے آپ کو ملنا پڑتا ہے. اس طرح عجیب و غریب قسم کی شکلیں ہوتی ہے. اس لیے اگر اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو بے قبل القبض کی ضمانت بے انحصار کی ہوتا ہی ہے، عمومی طور پر دھوکہ اور تصدیق کی توبت آتی ہے. لیکن آپ سن چکے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ چاہے وہ وجود میں نہیں ہے، لیکن عام وطن لوگ اس طرح کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. تو شرعی اعتبار سے ان کی گنجائش کبھی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی. آپ کو مثال لے کے چکا ہوں، مسجد کی صفوں کا مسئلہ آیا تھا اور اس نے کہا کہ بھائی ترکی سے مال منگوا رہے ہیں، وہاں سے مال آیا ہی نہیں ابھی، اور اب وہ دوسرا کوئی مال لینے کے لیے گلیاں چھٹکنے کی ہوتی ہے اس طرح کی. تو یہ اس طرح یا مال تیار ہو کر نہ آئے، حقیقت میں بھی ایسا بنے کہ جس ملک سے مال منگوا رہے ہیں وہاں کے حالات کچھ اس قسم کے ہوئے کہ وہاں سے مال تیار وہاں بن ہی نہیں رہا ہے، یا چیز اتنی مہنگی ہو گئی کسی ملک میں اس طرح کی شکلیں بن سکتی ہیں. ابھی افغانستان کا دیکھ رہے ہیں، ڈالر سب نے لوٹ لیے، ملک میں ڈالر ہی نہیں ہے. تو کاروبار کی پوری دنیا کس سے وابستہ ہے؟ ڈالروں سے. تو وہ ختم ہو گئی تو سارے لوگ پریشان. تو مصنوعی طور پر لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جا رہا ہے پیسے لے کر، پھر بھی روک کیوں نہیں ہے، وہ ان کی پالیسی کا ایک حصہ ہی بنے ہوئے تھے لے کر جانے والے، تاکہ ملک کی بینکوں میں رہے ہی وہ چیز. تو اب اس طرح کی خطرات کی بھی کسی ملک سے وابستہ ہو سکتے ہیں، اچانک آ جائے حادثہ. اب آپ نے کاروبار کیا ہونے وہاں والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ اس طرح کا گڑبڑ. اس لیے قبضے کا غرر انفساد من وجہ کا آ ہی جاتا ہے. دو آدمی کسی بھی طرح کا قبضہ قبضے کے بغیر معاملہ کرتے ہیں تو سامنے والا اس پر قبضہ کر ہی نہ سکتے. تو کیا کریں گے آپ نے تو سودا کر لیا ہے اس کے ساتھ. اس لیے قبضے کی حقیقت میں اگرچہ کچھ رات دن بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوتا ہے، جیسے مثال دے چکا ہوں، آپ کسی تاجر سے کوئی چیز خریدنے کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ چیز آ جائے گی، اس کا بھروسہ ہوتا ہے اوپر والے کسی تاجر سے، اس کا کسی اور سے، اس کا کسی فیکٹری والے سے. مال وہاں تیار نہیں ہوا، یا آپ کے مال کے بجائے دوسرا کوئی زیادہ نفع والا مال آیا، فیکٹری والے نے وہ بنانا شروع کر دیا، آپ کا مال سائڈ پہ رہ گیا، بارش آ گئی اور چھاتے آئے نہیں. اب وہ انارے میں چھاتے آئے، سیارے میں آئے، سردی کی سیزن میں تو کیا فائدہ ہے اس کا. سردی کی چیز گرمی کے دنوں میں تیار ہو کر آئے تو آپ کو 8 مہینے تک یہ مال پڑا رہنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آئندہ سال یہ ڈیزائن چلے کہ نہ چلے، یہ مال چلے یا نہ چلے، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں. اس لیے یہ غرر انفساد والی چیز من وجہین برداشت کر لی جاتی ہے. آپ دکان والے سے کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مطلب مال آ جائے گا. اب حالانکہ اس کو بھی معلوم ہے کہ مارکیٹ میں مال نہیں ہے، یا اس کو معلوم نہ ہو، اوپر والے نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہو، کیسے ہماری بات اس طریقے سے، اور وہ مال وہاں ہو ہی نہیں بلکہ وجود ہی نہ ہو. اس لیے مبی اس کے قبضے میں آ ہی نہ پائے اور خریدار لوگ کو مبی کے حوالے نہ کرے. اس دنیا کو ہی شریعت نے منع کیا ہے. نمبر 5، بے قبل القبض کی ممانعت کا تعلق اموال منقولہ سے ہے. اموال غیر منقولہ میں تو جائز ہے، اس لیے کہ بلڈنگ جائے گی کہاں پر؟ بنی ہوئی بلڈنگ. اموال غیر منقولہ میں بے قبل القبض બધું બતાવે તો આવી તમારી બિલ્ડિંગ આ જગ્યા પર છે, અંદર થોડી છે, કાગળિયા પર છે. اموال غیر منقولہ میں بے قبل القبض جائز ہے بشرطے کہ خریدار کے لیے انتفاع سے کوئی قوی مانع نہ پایا جاتا ہو. نمبر 6، مانے نہ ہو یہ ضروری ہے خریدار کے لیے، سبھی کو یہ قبضہ نہیں ہوا ہوگا. نمبر 6، اگر ایک شخص کسی بائی یعنی فیکٹری وغیرہ سے مال خرید کر کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دے اور ابھی خریدا ہوا مال فیکٹری نے روانہ بھی نہ کیا ہو تو یہ صورت بے قبل القبض میں داخل ہے اور جائز نہیں ہے. کہنے کہ مال آ گیا ہے، حالانکہ مال آیا ہی نہ ہو، رات اس طرح کے جھوٹ چلتے رہے. نمبر 7، اگر ایک شخص کسی فیکٹری وغیرہ سے خرید کر اس کو کسی خاص در دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کسی نے کیا تو جائز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی مال وقت پر آ گیا. اس نے آپ کو کہا تھا، اس وقت تو مال بنا نہیں تھا، اس کو جھوٹ میں کہہ دیا کہ ٹھیک کر، یا کہ 2-4 دن کے بعد آیا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. یقینی بات ہے کہ اس طرح کے معاملات چلتے ہیں. ایک ہوتا ہے قبل المعاملہ بات، فقہا نے اس کو تو منع ہے. لیکن اب بیع جدید کے حق کی سازش، معاملہ فاسد تھا، تیسرے کے حق میں شریعت میں گنجائش تھی، فساد والے معاملے اس طریقے سے فاسد شرطیں رکھی تھی. دونوں نے معاملہ کر دیا، اب تیسرے اور آپ کے درمیان معاملہ ہوا، وہ فاسد نہیں تھا تو مبی جس کا معاملہ تھا وہ محل موجود تھا، بائع اور مشتری اہل تھے. اور اب فاسد شرط جب ہو گئی تھی ان کے درمیان، وہ کود کر دوسرے کے پاس چلی گئی وہ چیز،
اور ان دونوں کا معاملہ فاسد شرط کا نہیں ہے تو گنجائشیں دی اس طریقے سے عام متن. اگر ایک آدمی آپ کو مسئلہ بعد میں پوچھ رہا ہے کہ فلاں نے سے معاملہ کیا تھا اور وہ مال تیار نہیں تھا، پھر بھی اس نے مجھے کہا کہ مال تیار، اور اب 1-2 دن کے بعد مال آ گیا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، تو فقہاء کرام نے اس کی گنجائشیں دی ہے، لیکن ہر معاملے میں گنجائش دینے میں پریشانی ہے. اگر علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو قفیز الطحان والی مثالوں میں آپ سن چکے ہیں، اور عصر حاضر میں بہت ساری اس قسم کی چیزوں کی وجوہات جائز ہے، حالانکہ قانونی طور پر اس پر قبضہ ہوتا نہیں ہے، لیکن بعد میں اس چیز کی گنجائش فقہاء کرام نے دے دی. آپ مثال سن چکے ہیں، چندے کے لیے جن حضرات کو بھیجا جاتا ہے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، خیر چندہ تو بہت بات کی چیز. فیکٹریوں کے اندر جو مال تیار ہوتا ہے اس کے لیے دوسروں کو جو سیلس مین بنائے جاتے ہیں اور ان کی اجرت، ان کا اپنا عمل ہوتا ہے، کتنا عمل ہوگا یہ معلوم، اس قسم کی چیزیں، لیکن آپس میں معاملات چونکہ چل رہے ہیں تو بن وجہ گنجائشیں دی گئی. نمبر 7، اگر ایک شخص کسی فیکٹری وغیرہ سے خرید کر اس کو کسی خاص ذریعے یعنی جہاز، ٹرانسپورٹ پرمٹ وغیرہ سے سامان کی ترسیل کا آرڈر دی اور مطلوبہ سامان فیکٹری سے روانہ بھی کر دیا جائے اور نقصان کی صورت میں خریدار اس کا ضامن ہوتا ہو، اس ترسیل کی اجرت خریدار کے ذمے ہے، تو جس ذریعے سے مال روانہ کیا جائے اس کا قبضہ خریدار کی طرف سے وکالتاً قبضہ متصور ہوگا. لہذا اس صورت میں مال پہنچنے سے پہلے خریدار کو فروخت کرنا جائز ہے اور یہ بے قبل القبض میں داخل نہیں. البتہ جس شخص نے اس خریدار سے مال خریدا ہے، اس خریدار دوم کے لیے مال پہنچنے سے پہلے دوبارہ بے جائز نہیں، اور اگر بے کرے تو یہ بے قبل قبض کے زمرے میں داخل ہوگی. ان تاجروں کا اس طرح چلتا ہی رہتا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ کبھی کبھار ترسیل کا آرڈر دے کر مطلوبہ سامان فیکٹری سے روانہ کر بھی دیا ہے اور نقصان کی صورت میں خریدار اس کا ضامن بھی ہوتا ہے. یہ چونکہ شرعی اعتبار سے رسک لینا ہوتا ہے اور وہ اس کا رسک لے رہا ہے تو اب اس کا گویا خریدنے والا ہونا ثابت ہو گیا تو اب وہ دوسرے کو بیچ سکتا ہے. لیکن جہاں رسک کا معاملہ آیا ہی نہیں اور وہ براہ راست بیچا جا رہا ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں تو جائز ہیں. اچھا، اسی طریقے سے آپ کو کہا تھا کہ بلڈر کے پاس آپ مکان خریدتے ہیں، وہ بلڈر کے نام پہ نہیں ہوتا ہے، زمین جس کی ہوتی ہے اسی کے نام پر یا کسی اور کے نام پر ہوتا ہے، اور اب جب آپ اس کے پاس کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے نام پہ کر دو تو آپ کو کہے گا کہ معاملہ سن جاؤ، فلانا آدمی آئے گا اور وہ آپ کا معاملہ ان کا. اب کبھی اس کا اور اس کا جھگڑا ہو، اس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، اس کی رقم وہ جلدی نہیں دے رہا تھا زمین والے کی، یا کم دیا، کچھ بھی مسئلہ ہوا ہو، گڑبڑ کر دی کہیں. اب آپ جب جانے کے لیے اس نے کہا، اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، میرا اس کے ساتھ مسئلہ ہے. اب آپ کو کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی سے مل لو، آپ اس کو ملنے گئے، اس نے کہا مجھے تمہارے سے کیا معاملہ، میں نے تو اپنی زمین اس کو بیچی ہے. یا دو آپس میں بلڈر ہو، اب وہ کسی پہلے والے بلڈر دوسرے والے بلڈر کے پاس، دوسرے والا پہلے والے کے پاس بھیج دے کہ ان کے پاس جاؤ، تھا اس کے نام پر. اب یہ اس قسم کی گڑبڑیں آنے کی امکانات ہے، اس لیے ایسی چیزوں میں وضاحت کرنا ضروری ہے تو ہی آپ کا قبضہ صحیح ہوگا. اب آپ دوسرے کسی کو بیچ دو تو کیسے بیچنا صحیح ہوا؟ آپ کے نام پر تو ابھی ہوا نہیں ہے، اور آپ کے نام پر آپ یہ سمجھے کہ فلانا آئے گا، دستخط ہو جائے گی تو فلانا تو آیا ہی نہیں، کوئی اور فلانا آیا، یا ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اس طرح کے بھی مسائل بہت سارے ہوتے ہیں. اگرچہ تاجرانہ عرف میں اس قسم کی چیزوں کو یہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں عام احوال میں، لیکن عام احوال عام ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی تخصیص مانی شیء الا فی العام، ہر چیز میں الا فی تخصیص، الا فی الاستثناء ہوتا ہی ہے ہر چیز کے اندر. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ کے نام نہیں ہوا تو ایسے موقع کے لیے شرعی اعتبار سے ہونا ہے. اسی طرح آپ نے مال کا آرڈر سامنے والے کو دے دیا اور وہاں مال آیا ہی نہیں اس کے پاس، اس سے پہلے والے کے پاس بھی مال نہیں آیا، تو فیکٹری والے اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں. تو جب تک ان کا اپنا قبضہ اور اپنا رزق ثابت نہ ہو اور دوسرے کو بیچنا اس کے لیے جائز، اس کے لیے تو خریدنا جائز ہوا، لیکن کسی اور کو بیچنا اس کے لیے جائز نہیں ہوا. پانی میں رہتے ہوئے مچھلی کی خرید و فروخت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں موجود مچھلیوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے. فی زمانے میں مچھلیوں کے کاروبار کی بعض ایسی صورتیں مروج ہو گئی ہیں جن کے اس زمرے میں شامل ہونے کا شبہ ہوتا ہے. اس پس منظر میں اسلامک فقہ اکیڈمی کے 9ویں سیمینار منعقدہ جامعۃ الہدایہ لیکن پانی کے اندر ہے اور کہے کہ یہ تالاب ہے، اس تالاب کی مچھلی ہے، وہ مچھلی اندر ہے کہ نہیں یا ہے لیکن آپ کے قبضے میں آئی. یا چھوٹا سا قصہ ہے، شہزادے کسی کو پوچھا کسی نے کہ بھائی کیا کام ہے آج کل، بادشاہ کی لڑکی کی شادی کا ارادہ ہے، کہا تو کیا ہے، ہو گیا، کہا آدھا تو ہو گیا، میں راضی ہوں. تو اس طریقے سے یہ مچھلیوں کی خرید و فروخت، آپ یہ کہہ دو کہ فلاں مچھلی تو مچھلی آپ کے قبضے میں تو آئے، اس کے بعد سودے ہوتے ہیں. اس طرح مکانات میں بھی
जामियत उल हिदायत जयपुर में इस मसले पर बहस हुई और दर्ज दिल उम्र तय पाई। नंबर 1, नदी नाले नहरें जो किसी खास शख्स की मिल्क नहीं होती बल्कि सरकार उनको अशखास या कोऑपरेटिव सोसाइटी या ग्राम पंचायत को मखसूस मुद्दत के लिए बंदोबस्त कर देती है। ये मछली के हक के शिकार पर होता है, इसलिए ये मामला अक्द इजारा की सूरत में है और जायज़ है, लेकिन सरकार के लिए मुनासिब है कि ऐसे तालाब का बंदोबस्त न करे जिससे आम लोगों को ज़रर पहुंच सकता है। ये दूसरी बात है, सरकार ये अपने हैं तो सरकार ये करे, लेकिन उसी तालाब में पानी पीने के लिए जानवर आ रहे हैं, कपड़े धोने के लिए आ रहे हैं, यकीनी बात है कि उनको हरज होगा, दूसरे आएंगे तो इसलिए सरकार जो सरकारी होते हैं और जिनसे लोग इत्तेफाक कर रहे हैं ऐसे तालाब दूसरों को किराए पर न दें। हाँ, अपना खुद का है या हुकूमत दे रही है और वहाँ लोग इस तालाब को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, इस किस्म के तालाबों को दिया जा सकता है, वरना दूसरा भी डाल देगा। तभी सर में था पहले, ये है कि नहीं मालूम में तालाब में देखा है तो तालाब पहले उसके अंदर मछलियाँ जाल डाल के पंचायत को देते तो पंचायत किसी और को देती थी, तो चूँकि काम पंचायत का मसला होता है इसलिए पंचायत दूसरों को देती है, लेकिन अगर दूसरों की ज़रूरत तालाब ही से वाबस्ता है तो इनके लिए देना चाहिए, ये तो दूसरी है। नंबर 2, पानी में रहते हुए मछली को फरोख्त कर देना जायज़ नहीं होगा। अगर बाएं तालाब की इन मछलियों का मालिक हो तो इस सूरत में ये बेफासिद होगी, और अगर बाएं हस्बे हुक्म शरअ इन मछलियों का मालिक भी नहीं और उसे पानी से निकाले बगैर फरोख्त करता है। आप तालाब वाले के पास गए और दूर से आपने मछली देखी, आपने उसको कहा कि वो मछली चाहिए, तो अब तालाब छोटा होता है या काबुद्रा जैसा बहुत बड़ा तालाब भी हो, तो अब तालाब बड़ा है नहीं कर सकता, तो ये बहस सही नहीं हुई। और अगर से उसकी मिल कम है लेकिन वो आ नहीं रही है मछली इस तरह की, या बहुत बड़ा तालाब है और एक ही है कि छोटा तालाब है और उसमें से आ सकती है, तो आपने मिसाल मिले आपने इशारा कर दिया उसकी तरफ और उसके इख्तियार में भी है बताई हुई। जैसे दुकान में आप तो फलानी चीज चाहिए और वो चीज निकाल के आपको दे देते हैं। पानी से निकाले बगैर फरोख्त करता है तो ये बेबातिल होगी। अलबत्ता अगर होश छोटा हो और वो मछली आसानी के साथ निकाल कर खरीदार के हवाले की जा सकती हो तो ऐसी सूरत में पानी में रहते हुए मछली फरोख्त की जा सकती है। नंबर पड़ी चुके हैं मछली का और इसी तरह पड़ी देगा हवा में उड़ रहा है और आप कहो कि मैं आपको बेच दिया। नंबर 3, मछली के मालिक होने की 3 सूरतें हैं। नंबर 1, तालाब में मछलियां कुदरती तौर पर आ गई हो और तालाब के मालिक ने उन मछलियों को रोकने की तदबीर की हो। नंबर 2, मछलियों के घर से तालाब बनवाया गया। नंबर 3, किसी शख्स ने तालाब में मछली की अफजाइश के लिए किसी शख्स ने तालाब में मछली की अफजाइश के लिए मछली के जेरे डाले हो। लेकिन किसी भी तालाब में डाल लो, किसी की मिल्कियत है ना, आप डालो तो ये मेरा है। लखनवी निचोड़ लोग होते हैं, कासिम साहब बार बार सुनाते थे, वो बैठा है ना, आप गए और आपने समोसे लिए हैं, अगर आप उसको कहो कि चलो हजरत तो तैयारी है, अगर आपने नहीं कहा तो जेब में से नींबू लाता है, नींबू लाकर निचोड़ता है आपके समोसे को, अब तो आपका तकाजा है नहीं कि आप कहेंगे कि चलो, और फिर भी नहीं कहा आपने तो और वो खाने लगा, आपने गुस्से में तमाचा मारा तो वो कहेगा अब्बा जान की याद आ गई, इसी तरह मार के खिला दे, दो चार और दे देने की तो मार के खिलाना हुआ कि खिला के मारना हुआ। नोट, मौलाना शाहीन जमाली साहब के नज़दीक मौजूदा वसाइल माहीगीरी, तामुल और हाजत इंसानी की रियायत के नुक्ते नज़र से ममलूका मछलियाँ पानी के अंदर हो और तालाब ऐसा हो कि जाल उसका अहाता कर ले, तब उनको पानी के अंदर भी फरोख्त करना जायज़ है। तो कर लेते हैं, लेकिन ये कि कभी कभार नहीं आई, मछली भी जिंदगी होती है, तो नहीं आई तो क्या करेंगे, मौलाना जी गए। शेयर और उनकी खरीदो फरोख्त, किसी कंपनी का खरीद करदा इक्विटी शेयर कंपनी में शेयर होल्डर की मिल्कियत की नुमाइंदगी करता है, वो महज इस बात की दस्तावेज नहीं है कि उसने कंपनी को इतनी रकम दी है। नंबर 2, ऐसी कंपनियों के शेयर्स की इब्तिदाई खरीदारी जो अभी सरमा इकट्ठा करने के मरहले से गुजर रही है, शरन खरीदारी नहीं बल्कि इस कंपनी में शिरकत है। नंबर 3, आमतौर पर कंपनियों की दूसरी अमलाक नकद सरमाए से ज्यादा होती है, इसलिए कंपनीज के शेयर्स की खरीदारी दुरुस्त है, लेकिन अगर मालूम हो जाए कि अदा करदा नकद इस मिकदार नकद के बराबर या इससे कम है जिसकी शेयर्स नुमाइंदगी करता है, तो ऐसी सूरत में शेयर की खरीदारी इसकी मुकर्ररा कीमत से कम या ज्यादा पर दुरुस्त न होगी। नंबर 4, हमारे यहाँ एक तरफ तलवार है उसमें सोना है और एक तरफ ये है, तो शेयर्स में भी इस तरीके की दूसरी कंपनी की नकद सरमाए से उम्मत तो ज्यादा ही होती है, लेकिन यह है कि इस तरीके से अगर नई है कंपनी के पास और नया शेयर खरीदा जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है, तो उस वक्त ये समन के बदले में समन यानी कि सोने के बदले में सोने के या चांदी के बदले में चांदी के हुक्म में होता है, बराबरी जरूरी होती है।
नंबर 4, जिन कंपनियों का बुनियादी कारोबार हराम है, मसलन शराब व खिंजीर के गोश्त की तिजारत या सूदी कर्जे देना वगैरह, उनके शेयर की खरीदो फरोख्त नाजायज है। नंबर 5, शुरकाए सेमिनार का एहसास है कि हिंदुस्तान में ऐसी कंपनीज का कियाम काबिल अमल है जो खालिद इस्लामी उसूल तिजारत के एतबार से कारोबार करे। सेमिनार मुस्लिम तुज्जार और माहिरीन माशियात को इस तरह मुतवज्जे करना जरूरी समझता है कि वो अपनी दीनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ऐसी कंपनीज के कियाम की जिद्दोजहद करे जो कामिल तौर पर इस्लामी अहकाम पर कारबंद हो। क्योंकि अमूमन गैर मुस्लिमीन के है, मुसलमान है लेकिन इस तरह नहीं करना है और गैर मुस्लिमीन तो इनका भी होना आएगा और दूसरी बात यह है कि मसाइल उनके लिए कुछ और है कि हुकूक के मुकल्लफ ही नहीं रहना के यहाँ, इसके असल तो वो उसूल के मुकल्लफ, इसलिए अगर इस किस्म की चीज़ों को करते भी हैं तो इनका तो मजहब और शरीयत से कोई दखल नहीं है। अब एक मुसलमान उनके शेयर खरीदेगा, इसके बजाय एक मुसलमान के शेयर खरीदेगा तो मुसलमान अपने पूरे कारोबार में इस्लाम की रियायत करेगा उसके मुकाबले। इसलिए मुसलमान ताजिरों को कहा गया है कि वो खुद इस तरह की कंपनियाँ खोले। लेकिन चूंकि फिलहाल ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है, यहाँ बहुत कम है जो खालिद इस्लामी बुनियादों पर कारोबार करती हो, इसलिए जिन मुसलमानों के पास नकद सरमाया हो और अपने मखसूस हालात की बिना पर उनके लिए जायज़ तिजारत में इस सरमाए को लगाना काबिल अमल न हो, उनके लिए ऐसी कंपनीज के शेयर खरीदने की गुंजाइश है जिनका बुनियादी कारोबार हलाल हो, मसलन इंजीनियरिंग के सामान या आम इस्तेमाल की मसरफी चीज़ें तैयार करना, अगरचे इन्हें बाज़ कानूनी मजबूरियों की वजह से सूदी मामलात में मुलव्वस होना पड़ता है। नंबर 6, जिन मुसलमानों ने ऐसी कंपनीज के शेयर खरीदे जिनका बुनियादी कारोबार हलाल है लेकिन वो कंपनी ज़िम्नी तौर पर बाज़ नाजायज तसर्रुफात में भी मुलविस होती है, इन मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि शेयर होल्डर्स की सालाना मीटिंग में कंपनी को आइंदा ऐसे नाजायज तसर्रुफात से रोकने की कोशिश करे और दूसरे शेयर होल्डर्स को इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए इस बात पर आमादा करने की सही करे कि वो भी इनके नुक्ते नज़र से इत्तिफाक करते हुए मीटिंग में इनकी तायीद करे। इसलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वक्त कहा था अंग्रेज के कुछ उसूल और रास्ते होते। इसके बाद जो मुल्की हुकूमतें कायम हुई यहाँ भी न वहाँ भी पाकिस्तान में भी, तो ये मुल्की हुकूमतों में खुद मुख्तार हो गए। इसलिए कोई किसी किस्म की इस तरह की अंग्रेज़ों ने जो चीज़ें अदब और उसूल में रखी हुई थी, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना और लोगों के हुकूक का ख्याल करना, ये अब बहुत कम हो गया है बावजूद मुसलमान होने के भी। इसलिए अब शेयर्स कंपनी में इंडिया हो के पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं। मुसलमान होने की बुनियाद पर यह हो सकता है कि अमूमी तौर पर जो चीज़ें वो खरीदो फरोख्त करते हैं, अक्सर चीज़ें असल मादा जो है वो हलाल हो, लेकिन जिन ज़राए से वो आ रहा है या वो खुद इन कारोबार में किस किस्म की शर्तों के साथ चीज़ खरीदते हैं तो मजमुआ नतीजा अफजल के ताबे है। यहाँ तो मजमुआ पूरा का पूरा इस तरीके से वासिलात का मजमुआ होता है और फिर उसके बाद शेयर कंपनी में ये माल आता है। नंबर 7, अगर कंपनी के मुनाफे में सूद भी शामिल हो और उसकी मिकदार मालूम हो तो शेयर होल्डर के लिए मुनाफे में से उसके बकदर सदका बिला नियत सवाब कर देना जरूरी है। नंबर 8, अगर कंपनी के मुनाफे में सूद भी शामिल हो और हासिल होने वाली सूदी आमदनी को कारोबार में लगाकर नफा कमाया गया हो तो जितना फीसद कुल आमदनी में सूद मखलूत हो गया है इसी तनासुब से मिलने वाले मुनाफे से निकाल कर बिला नियत सवाब अपने मिल्क से निकाल लेना जरूरी है। 9, लेकिन ये लुज़ूमी चीज़ नहीं है, मुतलकन देने की गुंजाइश ने की है बगैर सवाब की नीयत के किसी गरीब को, तो अब आप इसकी जो तकसीम करते हैं वो एक दूसरा मसला है। मुफ़ाए आम्मा के कामों में सूद का इस्तेमाल और एक सूद का इस्तेमाल इंफरादी किसी शख्स को दे रहा है। हज़रत मुफ्ती लाखन साहब हज़रत खानी वगैरह इन हज़रात का रुझान है कि इंफरादी किसी को सवाब की नीयत किए बगैर देना वो ज़्यादा मुनासिब है, बल इस वक्त इज्तिमाई कामों के लिए दिया जाना, कब्रस्तान के लिए देना, मस्जिद के बैतुल और इसमें जानानों के लिए देना, ये इस किस्म की जो शक्लें बनती है ये मुनासिब मालूम नहीं होती है। इसलिए कि हर मालदार गरीब सभी इसका इस्तेमाल और फिर गरीब के लिए भी जायज़ कहाँ है, ये तो एक मजबूरी का दर्जा दिया गया है सूद का है। तो कंपनी के मुनाफे में अगर सूद भी शामिल है तो ये कंपनी की कितने फीसद मुनाफे इसके अंदर सूद है उन्होंने तो मुतलक लिख दिया है। लेकिन मुसलमान मजबूर है कारोबार में, जिनके पास पैसे होते हैं वो कारोबार में कहाँ लगाए। कंपनियों पर इतना इत्मीनान होता है कि कानूनी तौर पर वो चलती है और इंसानों के साथ इंफरादी मामले होते हैं कारोबार में तो कपड़े ज़्यादा होते हैं और फिर कानूनी तौर पर भी इस तरह की कोई बचाव नहीं होता। यहाँ कंपनी में तो बहुत सारे लोग मिलकर होते हैं लेकिन वहाँ भी नहीं होता है। सकीम वगैरह और दूसरी कंपनियों का हो गया, अब तक लोगों को उनकी चीज़ नहीं मिली। हुकूमत ने वादा किया था कोरोना की दुनिया को जितने लाभ देंगे वो अभी तक किसी को नहीं मिले। तो ये इस किस्म की चीज़ें होती है कि जिसके अंदर वादे तो किए जाते हैं या इस किस्म के मामला होते हैं और फिर नतीजे के एतबार से सूद वाली इस किस्म की चीज़ें शामिल हो जाती है। तो सूदी आमदनी को कारोबार में लगाकर नफा कमाया तब तो अलग चीज़ है और एक यही जो सूद आ गया अब ये
6 महीने में या साल पूरा होने पर कंपनी की तरफ से आपको उसका पूरा तारुफनामा आता है, उसका बैलेंस शीट आता है और इस तरह की चीज़ों के जरिए आप अंदाज़ा लगाते हैं कंपनी ने इतना फीसद सूद लिया है, फलाने से इतना सूद लिया, फलाने को इतना सूद पर दिया, तो ये इस तरीके के सूद लिया है, ये अंदाज़ा लगाकर आप इतना सूद चाहिए कर लें अंदर से, सूद समझ कर नफा में से। नौ दफा नंबर 7 और 8 में मौलाना रईसुल अहरार नदवी साहब के नजदीक सूद की रकम गैर मुस्लिम ही को दी जाए। ये दोनों शक्लों के अंदर, क्योंकि आप इफ्तिरादी तौर पर कारोबार कर रहे हैं, अब कंपनी की तरफ से आपको जो नफा मिला है उस नफा को सूद उसके अंदर शामिल हो गया, तो ये सराहतन सूद वाला मामला, इसलिए बेहतर ये है कि मुसलमान को न दिया जाए। खैर ये इनकी अपनी राय है, वरना मुसलमान को इसमें भी न दे, उसमें भी न दे, या इसमें न देने उसमें दे, तो उनका कोई फर्क ही नुक्ते नजर से समझ में नहीं आता है। नंबर 9 कंपनी की अपनी कानूनी शख्सियत है जो शेयर बिल से निकाल लेना जरूरी है, इतना तो जरूरी है, अब किसको दिया जाए ये दूसरी बात है। कंपनी अपनी कानूनी शख्सियत है जो शेयर होल्डर्स की इज्तिमाई हैसियत की नुमाइंदगी करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के मुंतखब करदा अफराद का मजमुआ है जो कंपनी की तरफ से तसर्रुफात करता है और इस तरह शेयर होल्डर के मजमुए का वकील है। लिहाजा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तसर्रुफात जो कंपनी के मुकर्रर करदा उसूल व ज़वाबित की हुदूद में हो कि बिल वास्ता जिम्मेदारी सभी शेयर होल्डर्स पर आती है। आप सुनी चुके हैं, कंपनी हमारा वकील है, इसलिए वकील का अमल मुवक्किल का अमल है, लेकिन मुवक्किल को मालूम है कि मेरा वकील गलत कर रहा है, तो खाली आवाज़ लगा दे, इतना काफ़ी है। हालांकि ये इसलिए शेयर्स के कारोबार का मसला थोड़ा है बदल। नंबर 10 हलाल कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयर की तिजारत करना दुरुस्त है। किस दर्जे की हलाल है, क्या हलाल की पोजीशन उनकी है, ये पूरे के पूरे मसाइल से वो वाकिफ नहीं होते, इसलिए गड़बड़ करते हैं। इसलिए इन्होंने जो इस्लामिक उलमा की जो कमेटी है उन्होंने कुछ कंपनियों के शेयर खरीदने की गुंजाइश दी है, वहाँ ये कहते हैं कि वो निगरानी नहीं करते हैं। अगर वो निगरानी करते हैं और किस तरीके से है और उन्होंने इत्मीनान किया है उस कंपनी के, अगर से कारोबार 100% का किसी के कारोबार पर मुतमईन नहीं, बात दोहराने खबर नहीं कि शोरूम में दर्जा करे, कंपनी लेकर में देता है लेकिन कैसे कारोबार कर रहा है, ये कुछ उसूल और कुछ ज़ाब्ते ऐसे होते हैं कि दूसरों को बताए थे, या कारोबार की कुछ शक्लें ऐसी करते हैं कि दूसरों को मालूम होती, तो कंपनियां भी इस तरीके से करें और हमें मालूम न हो, इस तरह की भी इम्कान है। नंबर 11 फ्यूचर सेल जिसका मकसद शेयर खरीदना नहीं होता बल्कि बढ़ते घटते दाम के साथ नफा नुकसान बराबर कर लेना मकसूद होता है। इस्लामी शरीयत की निगाह में नाजायज है क्योंकि ये खुला हुआ जुआ है। जुआ खेलने वालों को अभी आया गुजरात के अंदर कौन मुख्यमंत्री बने, इसके लिए जुआ खेला गया कितने करोड़ों का, और बहुत सारे लोग खा गए, नए कोई बुए कोई निकाला नहीं। तो ये इस तरीके से जो सट्टा खेलने वाले हैं तो उनको तो कोई चीज़ बीच में चाहिए। बुजुर्गों का किस्सा सुन चुके हैं, किसी बुजुर्ग के पास हजरत नंबर दे दो, दो तमाचे मारो, फिर जुड़ी उनकी नहीं दी 2 नंबर, और आ गया इत्तेफाक से, फिर हजरत आपकी जूतियों का सदका हदिया में भी लेकर गया है। तो ये इस किस्म के लोग जो होते हैं वो छोटे बच्चे को पूछते हैं क्या दूँ नंबर आपसे, वो उसको तो कोई शोर नहीं है, कोई ऐसा जानकारी में ऐसा हो चुका है, बाजार में बैठते थे और इस तरीके से नंबर लेते ही रहते थे। हमारे देवबंदी साहब भी थे, बड़ी उम्र के 500 वक्त के नमाजी थे, लेकिन उसमें पीछे नहीं रहते थे, बैठे ही रहते थे, उनके रिश्तेदार भी हम। तो इस तरीके का भी कुछ अमल होता है जिसके अंदर ये लोग इस तरह चीज़ें करते हैं सट्टे के अंदर। तो फ्यूचर सेल में कोई चीज़ बढ़ाना चाहिए, क्रिकेट हो तो क्रिकेट, इंतखाब हो तो इंतखाब, इस तरीके से गेहूं के ऊपर जवाब खेला जा रहा है, जौ के ऊपर खेला जा रहा है, कोई ना कोई चीज़ के ऊपर सट्टा खेलते हैं। तो फ्यूचर सेल में भी मकसद शेयर के ऊपर होता है, फलानी कंपनी का शेयर इतने रुपये 2 महीने के बाद होगा, कम होगा या ज़्यादा, अभी सौदा हो रहा है, 2 महीने के बाद कीमत जो थी शेयर्स की वो कम भी हो जाए या ज़्यादा भी हो, दोनों में से जिसका फ़ायदा हो उसको मिल जाएगा। नंबर 12 गायब सौदा फॉरवर्ड सेल जिसमें बे तो हो जाती है लेकिन उसकी इजाफत मुस्तकबिल की तरफ की जाती है। बे नहीं वादे बे है, मुकर्ररा तारीख आने पर इजाब व कबूल होने के बाद ही बे वजूद में आएगी। अगर से ये मसला है गायब सौदे जिसके ऊपर इस तरह की यानी सौदे ही हो जाते हैं लेकिन अभी नहीं, उसका अमल होगा फलानी तारीख से, तो इस्लाम में तो ये जायज़ नहीं है कि वो शरई को जिस वक्त सौदा हो उसकी मिल्कियत आ जाती है दोनों की, ये तो वादे बे हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 13 हाजिर सॉरी कैश सेल स्पॉट सेल में शेयर सर्टिफिकेट पर कब्जा से पहले खरीद करदा शेयर्स को फरोख्त करना जायज़ नहीं होगा। शेयर सर्टिफिकेट पर कब्जा से पहले खरीद और फरोख्त करना शेयर्स को फरोख्त करना जायज़ है, लेकिन आप इसकी मिसालें सुन चुके हैं, कुछ चीज़ें वो होती है कि उनके अंदर कोई फर्क पड़ता नहीं है, नाम इधर से उधर मुंतकिल होने में 5-10 दिन लग जाते हैं। अब आपने शेयर खरीदा तो उस शेयर को आप बेच भी सकते हैं। नंबर 14 शेयर सर्टिफिकेट हासिल होने के बाद खरीदार का इस पर कब्जा मुतहक्कक हो जाता है, अगरचे बाद इंतजाम दुश्वारियों की वजह से कंपनी में इसका नाम इंदिराज न हो सका है, लिहाजा इस शेयर को खरीदार फरोख्त कर सकता है। नंबर 5 शेयर सर्टिफिकेट पर कब्जे से पहले ही खरीद करना शेयर कब्जा हुआ ही नहीं और आपने दूसरे को बेच दिया,
रुकावट आए और आपको वो चीज न मिल सके। नंबर 15, जिन शेयर की खरीदो फरोख्त जायज़ है उनकी खरीदो फरोख्त में ब्रोकर की हैसियत से काम करना दुरुस्त है। नाजायज दलाली कर रहा है तो ये दो आदमियों के दरमियान जैसे कारोबार में दलाल बनता है, सिमसार होता है, इस तरीके से इसमें भी हो सकता है। नाजायज और हराम कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त में बहैसियत ब्रोकर काम करना जायज़ नहीं है। कंपनी के शेयर। नंबर 1, ऐसी कंपनियां जिनका कारोबार खालिस हलाल है, इस्लामी मालियाती इदारा या कोई भी मुसलमान उनके शेयर खरीद सकता है। नंबर 2, ऐसी कंपनियां जिनका कारोबार खालिस हराम है, उनके शेयर की खरीदारी हरगिज जायज़ नहीं है।